आज की वीडियो में गाइस H1B फ्रॉड के बारे में बात करेंगे फिर से। सारा ने एक्सपोज किया है, सारा ने कुछ लोगों को दिखाया है जो इंडियंस हैं और जो खुद ही फ्रॉड डिस्कस कर रहे हैं ऑनलाइन, टीचिंग अदर्स हाउ टू डू फ्रॉड। अगर आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी अभी तक, पूरी वीडियो यू कैन गो वॉच ऑन सारास चैनल, उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। बट मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा और उसके ओरिजिनल वीडियो से छोटी सी क्लिप लाया हूँ आपके लिए, क्योंकि हर चीज़ जो उसने दिखाई है ज़रूरी नहीं है कि मैं भी एग्री करता हूँ, नहीं करता हूँ। जो चीज़ मैं एग्री करता हूँ वो दिखाऊंगा आपको आज। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। Very interesting development happening in the H1B world. And that is that despite the fact that we have been exposing all of their scams and all of the fraud, they just seem to be emboldened by it now. They're like, you know what? If we're going out with a bang. We're going down in a blaze of glory, I guess, because they're talking about it more than ever. They're saying all of the quiet parts out loud. They're sharing all the secrets of how these all of the scams work. They're just like doing podcasts about it, I guess. You have a H1B visa. Yeah, but most people misuse it. That's the point that I was coming. Like how they misuse it? There are two. One is an organized way in which is these Infosys type scams you find out about. Yeah, those two companies paid over millions of dollars of fine because they got caught for misusing the visa category. Okay. The other companies are small boutique scam companies. Yeah. So they'll have a main office in Hyderabad. Yeah. And they'll have a offshore, just for postal address sake, one office in the US. So when you graduate, let's say you graduate from university, you didn't get any job. Correct. I will hire you on my payroll. You're not doing any job. Correct. Some fake paperwork I'll do. I will provide you food. I will provide you accommodation. You just hang out with these boys in this dormitory, 10 other guys like you. And I will go and secure contracts from smaller companies that need IT. Like some hick town in Ohio has a small water company. They don't know how to do IT. They need a SAP website or whatever. It'll be like, I have a guy who has 20 years experience, and that's you, who just graduated. So everything guys. These guys clearly lie. 7 years experience in Java, and this guy's like, Java? What is Java? Right? Okay, now you technically work for me, but you're on a contract. You're on a project that I secured in this hick town. You don't know how to do the job. Correct. So you'll bring the work home. My guys who are sitting in Hyderabad will do the work for you. You pay 15%. And you still learn. In the meantime, you learn. They just use your degree. Yeah. That company. Yes. You don't have to do anything. But they will secure your H1B visa. That fake company. Yeah, they will secure it. I have a lot of questions. I'd like to know if that guy is misusing it or he's just explaining the criminals, but this is all part of their racket. They're explaining part of the racket. It's just one, several of a million scams that they've got going. ऑलराइट, तो ये जो पहली क्लिप देखी, ये कुछ नया नहीं है, ये मैं भी पहले दिखा चुका हूँ अपनी किसी वीडियो में, जिसमें बेसिकली ये 3 लोग बैठे हैं इंडिया में प्रॉब्ली, जो कि पॉडकास्ट कर रहे हैं, समझा रहे हैं। दे आर नॉट डूइंग स्कैम, दे आर एक्सप्लेनिंग द स्कैम कि कैसे काम करता है कॉन्ट्रैक्टिंग वाला। और यही सारे को अब रिसेंटली पता लगा होगा, वो आज दिखा रही है आपको कि अगर आपको नहीं पता मैं आपको समझा देता हूँ। कुछ कंसल्टेंसी कंपनीज होंगी जो लोगों को हायर करेंगी अपने पेरोल पे, और वो पेरोल चलाएंगी नहीं चलाएंगी वो नहीं पता। हो सकता है जेन्युइनली चलाएं, हो सकता है आपसे ही पैसे लेके आपको वापस दे दें पेरोल चलाने के लिए। मीनवाइल वो कॉन्ट्रैक्ट लेंगी किसी स्मॉल कंपनी का जिसको कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है ज़्यादा। दे जस्ट वांट अ पर्सन टू डू द जॉब एंड दैट विल बी दिस गाय जिसको कुछ नहीं आता। और ये बंदा आगे किसी और से थर्ड पार्टी से काम करवाएगा, इसको कमीशन देगा। तो बेसिकली कंपनी से पैसे ले रहा है ये बंदा काम करवा रहा है, आगे 15% कट उसको दे रहा है, नाम है इसका, काम कर रहा है कोई और। ऐसे फ्रॉड होता है ये वाला। मैं भी दिखा चुका हूँ पहले अपने चैनल पे। आज सारा ने दिखा रहा है क्योंकि प्रॉब्ली शी डिडंट नो कि ऐसे स्कैम चल रहे हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट वाली जो कंसल्टेंसी कंपनी होती हैं, काफ़ी कंपनियाँ ऐसे काम करती हैं। कुछ नया नहीं है ये चीज़, दिस इज़ नॉट न्यू, शी प्रॉब्ली डिडंट नो, बट उसको अब पता लगा तो उसने ये अब क्लिप डाली है। एंड दिस गाय इज एक्सप्लेनिंग द स्कैम, ही इज़ नॉट द वन हु इज़ डूइंग द स्कैम्स। इट्स रिडिकुलस कि जिन लोगों में टैलेंट नहीं है, जिन लोगों में स्किल नहीं है, वो लोग जॉब ले रहे हैं अमेरिका की। इंडिया में ले लो जॉब, इंडिया में यू वांट टू लर्न जावा, यू वांट टू लर्न SAP, इंडिया में सीख लो ना। अमेरिका की जॉब्स क्यों ले रहे हो भाई? अमेरिका की जॉब इज़ फॉर अमेरिकन्स।
अगर आपको आना है आप स्किल के बेसिस पे आओ, अगर ऐसे फ्रॉड करके आओगे तो किसको अच्छा लगेगा, बंद हो जाएगा। और खुलेआम ऐसे अगर ऐसी वीडियोस बन रही है ना, अगर अभी और दिखाएगी ये सारा 2-3 वीडियोस और दिखाएगी, अगर खुलेआम ऐसे फ्रॉड के बारे में बात करेगा तो बंद हो जाएगा, एक दिन बंद हो जाएगा। चलो कंटिन्यू करते हैं वीडियो। And now they're trying to train others how to keep the racket going. Like I said, they are saying all of the quiet parts out loud. It's quite shocking if you think about it. Like, it's like, do you guys, I mean, again, they must realize the gravy train is about to run out. Because even if what they're doing they think is technically legal, which I know a lot of these people are like, well, it's a loophole that we're going to exploit, right? But if you tell people that you're exploiting a loophole, the loophole will be closed. I mean, I shouldn't be explaining this to them. I'm glad. I'm glad that they're saying all of this out loud. I'm glad that they're saying it in broad daylight. I'm glad that this woman who I'm about to show you is just openly training other Indians how to dodge taxes using loopholes in the H-4 dependent visa. If you are on H-1B and your spouse is on H-4EAD, you need to hear this. And this is the best combo to build wealth and save tens of thousands on taxes. And okay, let me explain how this works. The W-2 spouse keeps their full-time job, while H-4EAD spouse runs a real estate business that qualifies as a real estate professional. And the reason why one spouse should become a real estate professional is because it's special status designated by IRS that could potentially allow both you and your spouse to pay $0 in federal income taxes. On your tax return, there's literally a checkbox that you can check. Single W-2 earners can't usually claim this, but married couple, or in this case, H-1B plus H-4EAD couples can. And by the way, it's enough already that these people are coming here to leech off of our resources, and now they want to avoid paying their fair share of taxes as well. Because listen, let me tell you, I was reliably informed by a credible source that they're always legally paying taxes. My problem is that You are paying taxes on time. We don't collect any taxes from our employees. You are doing all nonsense, creating nonsense, going to... I'm creating nonsense? Yeah. You think it's nonsense that I'm rooting out fraud and scams? We are paying legally taxes to the government, and who the are you come to ask all these things? I'm legally paying taxes to the government. That's all they want to say. We're legally paying taxes. We're legally paying taxes. Okay. Seems a little defensive. Maybe it's because you guys know how to scam the system. Now, in case you were wondering, that lady is, of course, on an H-4 and owns Airbnbs that I'm sure she runs all by herself. I'm sure there's no H-1B visa holder that's double dipping. So not only is she teaching others how to dodge taxes, she's also taking properties away from Americans, and she's working another tech job that is taking away another job that should have gone to an American. Now, इस वाली क्लिप में 2-3 चीज़ों पे ध्यान करना, गौर फरमाना। पहली चीज़, पूरी दुनिया को खुल के बता रहे हैं कि ये करो, वैसे करो, दैट्स अ लूपहोल को ऐसे एक्सप्लॉइट करो, लीगल है, लीगल है। इलीगल होता तो वैसे नहीं बनाती वीडियो, उसे पता है कि इलीगल है तो पकड़ी जाएगी। लीगल है तभी बता रही है, बट लूप होल है, और लूप होल जब आप एक्सप्लॉइट करते हो वो लूप होल बंद हो जाता है। तो वही सारा बोल रही है, ओ मे बी लाइक आई शुड प्रॉब्ली कीप क्वाइट, आई शुड नॉट टेल एनीवन, क्योंकि अच्छा है ये कि ये खुद ही बता रहे हैं, खुद ही एक्सपोज कर रहे हैं लूप होल, ताकि एक दिन ही बंद हो जाएगा। अच्छी बात है, करने दो। दूसरी चीज़, हमेशा सुना होगा आपने, हमेशा जो भी लोग होते हैं ना, जो भी इंडियंस की जब वो बताते हैं कि इंडियंस हाई पेइंग जॉब करते हैं, सक्सेसफुल है इंडियंस, उसमें एक लाइन ज़रूर आएगी, वी ऑलवेज पे टैक्सेस, इंडियंस ऑलवेज पे टैक्सेस, कभी टैक्स की चोरी नहीं करते। आप समझ आ रहा है, लूप होल को एक्सप्लॉइट करके हम लोग घपला करते हैं ताकि टैक्स ही ना दें। तो अगर टैक्स ही नहीं दिया तो मतलब वी ऑलवेज पे टैक्सेस। दैट्स वन वे टू थिंक अबाउट इट, राइट। और बीइंग एन इंडियन, मुझे पता है ये बात, हम लोग कितना टैक्स की बचाने की कोशिश करते हैं। अगेन, ये भी इलीगल नहीं है टैक्स बचाना, टैक्स सेविंग जितना कर सकता है हर कोई करता है। इंडिया में भी मैं रहा हूँ, इंडिया में भी मैंने जॉब करी है, और मुझे पता है इंडिया में लोग कैसे टैक्स की चोरी करते हैं, टैक्स बचाते हैं। और आपको क्या लगता है वो मेंटालिटी हम लोग अमेरिका में नहीं लाएंगे? लाएंगे, बिल्कुल लाएंगे। तो वही हो रहा है यहाँ पे। Every loophole, every trick which we can use to exploit, system and to save some taxes, some money, and then we say, oh, we always pay taxes. आखिरी क्लिप पे चलते हैं, और उसके बाद मैं 3-4 कमेंट्स पढ़ाऊंगा आपको इंडियंस के, कि वो क्या सोचते हैं इस चीज़ के बारे में। उससे पहले मैं कोई पॉज लूँगा, आपको रिमाइंड कराऊंगा, अगर आप ऐसी वीडियोस, आज की वीडियो अगर पसंद करते हैं, सब्सक्राइब करें चैनल को,
ऐसी वीडियोज़ और मिलेंगी आपको। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे, सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लस अगर आपको आज की वीडियो पसंद आ रही है, हाइप कर दें। हाइप करने से यूट्यूब ये वाली वीडियो और प्रमोट करेगा। कंटिन्यू करते हैं। Back when the $100,000 visa fee was a thing before it was thrown out by a rogue judge, this woman was talking about how to get around it. Not only that, it's an ad for a company that exclusively helps visa workers. If you are on an F1 visa in the US, you've already cleared the hardest hurdle. The new $100,000 H1B fee has crushed the job market, not making companies sponsor any overseas applicants. That's why you've got a huge advantage being in the US because the H1B fee doesn't apply to you. But you could easily waste this opportunity if you don't find a job and let your OPT expire. That's why so many international students are jumping on to MigrateMate. It's the only job platform specifically built for visa holders with over 500,000 sponsorship opportunities across every industry, all verified by the US government. You can view companies that sponsor up to 10 different types of visas like H1Bs, green cards, and so many more. And you can save your time and energy by directly contacting the should visa not be contact legal. at each company. You have an advantage, so make sure you use it. This should not be legal. This should not be legal. Now, I'd like to pour one out for one of the homies who, sorry, I regret to inform you, he didn't make it. He didn't make it. Well, I mean, probably still alive, but deported, gone. There was a Reddit confession that led to Indian students' deportation from the US. I planned something very wrong. So a 19-year-old Indian student who scammed his way into a top US university spoke about his very structured fraud in a Reddit post. I just don't understand how retarded you have to be bragging about your fraud online. और यही आज की वीडियो कि कैसे हम खुल के अपना स्कैम, अपना फ्रॉड हम दूसरे सबको बता रहे हैं, दुनिया को बता रहे हैं। लूप होल है तो उसको एक्सप्लॉइट करने के तरीके बता रहे हैं। अगर कोई कंसल्टेंसी ऐसे काम करती है, हम सबको बता रहे हैं ऐसे करो वैसे करो, क्योंकि कुछ भी करके हमें अमेरिका में घुसना है और वहाँ की जॉब चाहिए। और फिर बाद में रोते हैं हम लोग, वहाँ पर नौकर बनना पड़ता है अमेरिका में, 10 मिनट में डिलीवरी नहीं आती। फिर भी हम डंकी मार के अमेरिका आते हैं। कभी कोई अमेरिकन डंकी मार के इंडिया गया है? कोई नहीं गया, एक नहीं गया होगा। और यहाँ पर कितने चुप चुप के सब आते हैं, यहाँ पर ही यहीं का सिस्टम एक्सप्लॉइट करते हैं हम लोग, यहीं पर ही रोते हैं और फिर भी वापस नहीं जाना चाहते। आप मेरे चेहरे पे देख रहे होंगे मुझे कितनी स्माइल आ रही थी पूरी वीडियो में, राइट। आई लव स्कैमर्स बीइंग एक्सपोज्ड, आई लव फ्रॉडस्टर्स बीइंग एक्सपोज्ड। मुझे तो बहुत पसंद आता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कोई स्कैमर, कोई फ्रॉडस्टर जब एक्सपोज होता है, कोई स्कैम एक्सपोज होता है, मुझे बड़ा मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि आई एम अ ट्रू पर्सन। मैं चाहता हूँ इस देश में स्कैम ना हो, फ्रॉड ना हो, अमेरिका में कोई भी कर रहा हो। और इंडियंस जो फ्रॉड करते हैं उससे हमें फ़र्क पड़ता है, इसलिए मैं इंडियंस की वीडियो बनाता हूँ। 3 कमेंट्स पढ़ाता हूँ आपको, पढ़ो आप। ये सिर्फ इंडियंस के कमेंट्स है बाय द वे, किसी और नॉन इंडियंस का कमेंट नहीं लाया मैं आपके लिए, क्योंकि आपको लगेगा नॉन इंडियंस तो फिर बुराई करेंगे ही ना। इंडियंस के कमेंट देख लेते हैं। आई एम इंडियन वर्किंग ऑन H1B इन ओहायो। आई वॉन्ट इन्वेस्टिगेशन एंड सीवियर पनिशमेंट। दीज इंडियंस आर ब्रिंग बैड नेम टू ऑल ऑफ अस, शेम। थोड़ी सी इंग्लिश में टूटी फूटी इंग्लिश है, बट आप समझ सकते हो क्या बोलना चाह रही है, कि ये लोग हम सब के लिए शेम लाते हैं। दूसरा पढ़ो आप, ये भी कोई सैम निखर का है। थैंक यू सारा फॉर एक्सपोजिंग सच बैड एक्टर्स। बिकॉज ऑफ दीज सिस्टम अब्यूजर्स, पीपल लाइक माई ब्रदर एंड मी हु हैव US PhDs, patents and excellent journal publications can't get picked in the H1B lottery। ये होते हैं स्किल्ड लोग, ऐसे लोग। क्या क्या मतलब क्या टैलेंट है। और हम क्या देख रहे हैं, फेक डिग्रीज आ रही है इंडिया में। हम क्या देख रहे हैं, घुस जाओ, बस घुस जाओ, तुम अपन जो तुम्हें काम आएगा ना वो पीछे से करा लेना। वो टैलेंट आ रहा है, वो लोग आ रहे हैं अमेरिका। गुस्सा नहीं आएगा क्या? अगर यहाँ का सिस्टम एक्सप्लॉइट करेंगे हम लोग तो अमेरिकन को गुस्सा नहीं आएगा। ये पढ़ो, मास्टर इरशाद अली का। एक्सीलेंट जॉब सारा। माई सन अ US सिटीजन ग्रेजुएटेड लास्ट ईयर इन कंप्यूटर साइंस एंड स्टिल अनएम्प्लॉयड। साल भर से खाली बैठा है, ग्रेजुएट। तो ये तो प्रॉब्लम है। जब खुद तो हम आ गए, अब जब खुद के बच्चे को जॉब नहीं मिल रही तो सबको प्रॉब्लम समझ आ रही है। दैट्स एग्जैक्टली प्रॉब्लम। अगर यहाँ पर अनटैलेंटेड लोग जॉब लेते रहेंगे तो अमेरिकन्स को जॉब नहीं मिलेंगी। यही प्रॉब्लम पड़ रही है अब इरशाद के बच्चे को। ग्रेजुएट हो चुका है, जॉब नहीं मिल रही क्योंकि स्टूडेंट वीज़ा पे कोई जॉब ले रहा है उसकी। और आखिरी कमेंट आपके लिए, रामा कृष्णा का। इंडियन हेयर, वेटेड 18 years and I'm disgusted by these people bring bad name to those who are acting with honor। इनके कमेंट्स हैं, मेरे नहीं, और ये इंडियंस के कमेंट्स हैं। नॉन इंडियंस तो समझ आएगा कि कुछ भी अपनी इंडियंस की बुराई कर सकते हैं। ये तो इंडियंस हैं, ये क्यों बुराई कर रहे हैं फिर? अब हम खुद ही, क्योंकि हम ऐसे काम कर रहे हैं। अब देखो ऐसे लोग भी परेशान हो रहे हैं। अब
कि 18 साल वेट किया अपने ग्रीन कार्ड या सिटीजनशिप के लिए, और अब इनको फ़र्क पड़ता है क्योंकि हम बाकी लोग जो अब नए लोग आ रहे हैं वो ऐसे घटिया काम कर रहे हैं, ओपनली सबको बता रहे हैं ऐसे ऐसे करो सिस्टम को एक्सप्लॉइट। और फिर हम कहते हैं कि पता नहीं अमेरिकन हमें पसंद क्यों नहीं करते, क्योंकि हम लोग उनका सिस्टम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। क्या सोचते हैं आप लोग? कमेंट्स में बताना। आपका खुद का कोई एक्सपीरियंस हो H1B फ्रॉड के ऊपर, कोई अब्यूज़ के ऊपर, कमेंट्स में बताना। आई विल बी हैप्पी टू रीड दैट। और अगर आपको पूरी वीडियो देखनी हो सारा के चैनल पर देखें, गो विजिट सारा's चैनल। शाउट आउट टू हर फॉर एक्सपोजिंग ऑल द फ्रॉड, ऑल द स्कैम। आई लव स्कैमर्स एंड फ्रॉडस्टर्स बीइंग एक्सपोज्ड। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। बाय गाइस।